So when you come to Revelation chapter 2 and chapter 3, जब आप प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय या तीसरे अध्याय में आते हैं, this is the condition of Christianity in around 95 AD. और 95 AD में ईसा पूर्व में यही हुआ था। That is about 65 years after the day of Pentecost. और पेंतिकोस्त के 65 साल के बाद। So if the day of Pentecost was like Joshua, book of Joshua. जो पेंतिकोस्त का दो दिन है वो यहोशू के किताब के समान है। Revelation chapter 2 and 3 is like the book of Judges. और प्रकाशित वाक्य 2 और 3 जो है वो न्यायों के किताब के तुलना में है। Where 5 out of the 7 churches are corrupt. और यहाँ पे देखते हैं कि 7 में से 5 जो कलीसियां हैं वो सही नहीं है। They've gone away from the standards the apostles laid down. और जो मानदंड रखा गया था प्रेरितों के द्वारा उनसे वो बहुत दूर खिसक गए। The first in that list is this Ephesus church to whose elders Paul had warned. और वो पहली कलीसिया वो है एफिसुस की कलीसिया जिनको पौलुस प्रेरित ने चेतावनी दिया था। See, this is about maybe 35 years after Paul warned them in Acts chapter 20. ये करीबन 35 साल यानी कि पौलुस के चेतावनी देने के 35 साल के बाद हुआ। See the condition of the church. यहाँ पे देखिए कलीसिया की परिस्थिति। Yeah, you still do so many good things. हाँ, वहाँ पे लिखा है कि हाँ तुम अच्छी बातें करते हो। You are still holding true to the doctrine. और सिद्धांत में खड़े हो। And you're driving away the false apostles. और जितने गलत शिक्षा लेके आते हैं उनको Acts 2 verse 3, you got perseverance, you endured for my name's sake. और तुम मसीह के लिए जो है टिके हुए धीरज तुम्हारे अंदर है। All that was okay. ये सब सही है। But you have left your first love. लेकिन तुम अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। Once upon a time you loved me more than anyone else, Jesus said. और एक ऐसा समय था प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते थे। And then you became a little rich. और उसके बाद तुम थोड़े से धनाढ़े हो गए। So then you loved me and you loved your job and your money also. और उसके बाद तुम मुझसे प्रेम करते हो साथ में अपनी नौकरी और अपने पैसे से भी। Gradually 90% was your money and your job. और उसके बाद 90% तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा पैसा। 10% is me, says Jesus. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम अब केवल 10% मुझे देते हो। It's like a woman who started out loving her husband completely. ये उस तरीके समान है जो अपने पति से बहुत अधिक बिल्कुल पूर्ण तौर से प्रेम करती है। But a few years later she begins to get interested in other men. और कुछ सालों के बीतने के बाद वो दूसरे पुरुषों के साथ जो है after some time she's more interested in those other men. और उसके बाद कुछ साल और बीतने के बाद दूसरे पुरुषों के साथ उसका ज्यादा संबंध है। But she still stays at home with her husband. लेकिन अभी भी वो अपने ही पति के साथ है। That's what happened to the church, which is supposed to be the bride of Christ. और यही कलीसिया के साथ भी हो रहा है जो कि प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। And that's how it was the other churches too. और दूसरी कलीसिया भी इसी प्रकार से है। Revelation chapter 3 and verse 1, you have a name that you're alive but you're dead. और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पहले वचन में देखते हैं कि तुम जीवित कहलाते हो पर तुम मरे हुए हो। How do you get a name that you're alive? कैसे नाम मिलता है कि तुम जीवित होकर? Your doctrines are all right. तुम्हारे सिद्धांत सही है। You preach the baptism of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताते हो। You exercise the gifts of the Spirit. और वरदानों को जो है तुम इस्तेमाल करते हो। And you're very active. You have conferences and meetings. और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हर चीज में तुम सक्रिय हो। Evangelistic outreach. और दूसरों को सुसमाचार सुनाते हो। But godliness and holiness is not there. लेकिन पवित्रता या ईश्वरत्व आपके अंदर नहीं है। In your midst, the husbands and wives are still fighting with each other. इसका मतलब यह है कि पति पत्नी अभी भी लड़ते हैं। And they're still, all the people in your church are more interested in money than in Jesus Christ. और कलीसिया के लोग जो हैं धन में ज्यादा उनका दिल लगा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पर नहीं। And even the preachers are more interested in collecting money than in bringing people to a godly life. और जो मसीह का प्रचार करते हैं वो लोग भी ज्यादा पैसे पे ध्यान देते हैं। They have a name that they're alive. लेकिन उनके पास एक नाम है कि वो जीवित हैं। Every year they have so many conventions and meetings. और हर साल जो है उनका बहुत सारा मीटिंग होता है, कन्वेंशंस होते हैं। Lot of activity. और बहुत सारे सक्रिय तौर से कार्य होता है। The way to get a name in Christianity is by activity. और अगर जो मसीह लोगों में नाम चाहिए तो बहुत सारे सक्रिय तौर से कार्य करने से मिल जाएगा। The way to get a name in heaven is by holiness. लेकिन अगर जो स्वर्ग में आपको नाम चाहिए वो है पवित्रता के द्वारा। So if you're interested in a name before God, you'd make your people holy. तो अगर जो आपको स्वर्ग में नाम चाहिए तो आप अपने लोगों को पवित्र करें। If you're interested in a name on earth, you'll be just active. अगर जो दुनिया में नाम चाहिए तो आप सिर्फ सक्रिय तौर से कार्य करें। So God says you got a name on earth, but you're dead. हाँ, परमेश्वर कहता है कि संसार में तुम्हारा नाम है लेकिन तुम मरे हुए हो। And to another church he says,
chapter 3 verse 16, I will spit you out of my mouth. और 3:16 में दूसरे कलीसिया से कहता है कि मैं तुम्हें मुंह में से उगलने वाला And he हूँ। tells that church, और उस कलीसिया से कहता है verse 20, और 20 में, I stand at the door and knock. मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। Look at the condition of this church, that Jesus himself is outside the door. यहाँ पे इस कलीसिया के बारे में देखें कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस द्वार के बाहर है। You think their doctrines were wrong? क्या No. आपको लगता है कि वहाँ का सिद्धांत गलत है? They were singing good songs, वो अच्छे गाना गाते हैं right doctrines, और सही सिद्धांत है, a lot of activity, बहुत सारे सक्रिय तौर से कार्य होता many है, pastors and youth pastors and all that. बहुत सारे पासवान लोग हैं, जवानों के पासवान हैं, But Jesus is outside the door. लेकिन प्रभु यीशु मसीह द्वार के बाहर है। So you see the same thing that we saw in the history of Israel, तो हम वही चीज को देखते हैं जो इजराइल के इतिहास में हुआ। that the garden becomes a wilderness. यहाँ देखिएगा बगीचा एकदम जंगल हो गया। But some churches remained faithful. लेकिन कुछ कलीसिया ऐसे हैं जो वफादार बने रहे। For example, Smyrna, यहाँ के स्मरणा की कलीसिया, they were faithful. वो एकदम वफादार थे। They were poor, they were persecuted, but they were faithful. वो गरीब कलीसिया थी और उनको ऊपर ताड़ना पड़ी, लेकिन वो वफादार थे। Chapter 2 verse 8. और दो उसका 8 And then another church, Philadelphia, in chapter 3 verse 7. और 3 उसके साथ में फिलाडेल्फिया कलीसिया के बारे में है। This was a church, verse 8 middle, chapter 3 verse 8 middle. They had very little power. और देखते हैं कि उनके पास बहुत थोड़ी सी सामर्थ है। Ever didn't have great famous people in that church. और उनके कलीसिया में कोई महान लोग नहीं हैं, But they kept true to the word. लेकिन वो परमेश्वर के वचन में सच्चे उतरे। It says here, they did not deny my name. और वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को जो है नकारा नहीं, इनकार नहीं And किया। in all these 7 churches, the Lord speaks about overcomers. और हर एक कलीसिया में जो है विजय प्राप्त करने वालों के बारे में कहा At है। the end of every one of those 7 churches, the Lord says, the overcomers, I have a message for you. और वहाँ पे जो भी विजय प्राप्त करेगा उनके लिए एक संदेश यहाँ पे दिया हुआ Those है। are the people who are concerned that the garden has become a wilderness. और वो लोग हैं जिन्होंने पहचान लिया कि हमारा जो बगीचा है वो जंगल बन Who गया है, have a burden, how shall we make it a garden again? और जिनके अंदर बोझ है कि हम वापस उस जंगल को किस प्रकार से बगीचा बना सकते But they हैं। see the leaders and the most of the people in the church are not interested in that. लेकिन फिर भी वो लोग देखते हैं कि अगुए लोगों को ऐसा कोई चिंता नहीं है, They are happy with the wilderness. और वो उस जंगल में रहने के लिए बिल्कुल खुश हैं, So long as they give a good impression to people, जब तक वो लोगों के सामने अच्छा प्रकट होते हैं। that's okay. हाँ, वो They're चलता not है, bothered about what God thinks about them. और वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। And I want to say this, my brothers and sisters. मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और I बहन, have traveled in almost every denomination in evangelical Christianity in India. और भारत के अंदर ज्यादातर कलीसिया जो इवेंजेलिकल कलीसिया उन सब के अंदर मैं In जा the चुका हूँ। last 50 years, और पिछले 50 साल I've में traveled from Kashmir to Kanyakumari, मैंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सफर किया, Gujarat to Nagaland, और गुजरात से लेके नागालैंड तक। and I've seen one thing. लेकिन मैंने एक चीज देखा है, People are interested in giving a good impression to others. और लोग हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा प्रकट करने People में, must think well of our church. और लोग सोचना चाहिए कि हमारे कलीसिया के बारे में I ऊंचा। find very little fear of God. और मैंने बहुत कम परमेश्वर के भय को देखा And है, I'm sorry to say, I find very little clear, accurate understanding of Scripture. और मैंने बहुत कम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को भी बहुत कम देखा है। And where some people know the Scriptures, they don't have the power of the Holy Spirit. और जहाँ पे उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। We need both. हमें दोनों की आवश्यकता Where some है। people emphasize the Holy Spirit, they don't know the Word of God. और जहाँ पे कुछ लोग पवित्र आत्मा को ज्यादा मूल्य देते हैं, उनके पास वचन नहीं है। See, for a railway train to move from one place to another, अगर जो रेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, it needs rails. उसको जो है पटरी की जरूरत है, And it needs power, diesel power or steam power or something. और उसके अंदर सामर्थ भी होना चाहिए, या तो डीजल सामर्थ, या तो तेल का सामर्थ, या फिर कुछ और। Which is more important? क्या कौन सा सबसे You ज्यादा tell me which जरूरत is है? more important for a train, rails or power? बताइएगा, रेलगाड़ी चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, Well, you need ईंधन both. की या फिर पटरियों There's की? no question of choice. You need both. हाँ, हमें दोनों चीज चाहिए। If you want to go from Bombay to Pune, you need rails and you need steam अगर जो or power. अगर जो आपको बॉम्बे से पुणे जाना है तो आपको रेलगाड़ी में सफर And करना है, तो दोनों चाहिए, The ईंधन भी चाहिए और पटरी भी rails चाहिए। are a picture of God's word.
और जो रेल है, पटरी है, वो परमेश्वर के वचन को And दिखाता I'll है। tell you, if those rails are not absolutely parallel, if they're even slightly deviated at some place, the train will get derailed. और मैं बताना चाहता हूं कि पटरी जो है हर जगह एक समान दूरी उनमें होना चाहिए। अगर जो थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो पटरी से उतर जाएगी। Those people who lay the rails don't say what many preachers say. It doesn't matter if it's slightly different. और जो पटरी बिछाने वाला कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि कोई बात नहीं, ऐसा चलता है करके, जैसे मसीहा ये लोग बोलते हैं। That's what preachers say. It's almost parallel. It doesn't matter if it's exact. हाँ, जो प्रचारक है वो बोलते हैं कि हाँ समांतर दूरी में है, लेकिन कोई फर्क नहीं That's पड़ता। why the church is derailed. इसीलिए कलीसिया जो है पटरी से उतरा And हुआ that's है, why the trains are not derailed. और इसीलिए रेलगाड़ी पटरी से नहीं They उतरता, have more sense. क्योंकि उनके अंदर ज्यादा जो है विवेक है। At the same time, उसी समय if you have only got the rails अगर जो केवल पटरी है, and you come every Sunday morning and polish the rails अगर जो हर सुबह इतवार को आएंगे और सिर्फ पटरी को and चमकाएंगे there's no power in the engine, और बिल्कुल इंजन में ईंधन नहीं है, सामर्थ नहीं you're in है, the same place every Sunday. तो हर इतवार को आप एक ही जगह में There's no रहेंगे, progress. कोई आपके जीवन में बढ़ोतरी नहीं होगी। That some churches are like that. और कुछ कलीसियां इसी प्रकार की है, They've got the rails but no progress. उनके पास पटरी तो है लेकिन कोई उन्नति नहीं है। Then there are other people who say the rails are not important. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटरियों को बिल्कुल It's प्रमुखता the नहीं Holy देंगे, Spirit that's important. वो बोलेंगे पवित्र आत्मा ज्यादा प्रमुख They're है। like people who got a lot of steam or diesel power. और वो उस प्रकार के लोग हैं जिनके अंदर बहुत But अधिक ईंधन They है don't care for the rails. और वो पटरियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, That train is also stuck. और वो भी जो है बिल्कुल अटक जाता है। But they can blow the whistle, make a lot of noise in those churches. हाँ, वो कलीसिया इस प्रकार की कलीसिया जो बहुत शोर मचा सकती है। That no shortage of that. You can, when you're not running on the rails, you can make a lot of noise on the steam, हाँ, जब आप पटरी पे नहीं चल रहे हैं तो बहुत आवाज बना सकते हैं, but it's not moving. लेकिन वो चलता नहीं है। I'm not impressed by noise. और मैं भी जो है उससे ज्यादा खुश नहीं हुआ जो आवाज निकालते I'm हैं, not impressed by polished rails. और पॉलिश्ड पटरियों से भी मैं खुश नहीं हुआ। I want a train that's going from A to B, लेकिन मैं एक ऐसी रेलगाड़ी से खुश होता हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह खिसकता which is है, moving all the time. वो जो हमेशा चलता रहता I want है। a church that's progressing, मैं चाहता हूँ वो कलीसिया जो हमेशा बढ़े which is not becoming like a wilderness. और जो जंगल की तरह नहीं बनता। So, I've taken you now from all the way from the history of Israel through the history of the church. और ये पूरा इतिहास इजराइल का देख के मैंने कलीसिया का इतिहास से जोड़ा, And the reason I say that is because that's what's happened in 2000 years of Christianity. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि यही हुआ कलीसिया के अंदर 2000 साल से। But every now and then, God raises up somebody to say, hey, we got to come back to the original लेकिन teaching. परमेश्वर हर एक शताब्दी में किसी ना किसी को उठाता है जो कि लोगों को जगाता है कि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, Not going according to his ideas, but going back to God's word. और उसके सोच विचार के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। Let's go back to the word. हमें परमेश्वर के वचन में Let's जाना get है, these rails straightened out. और हमें रेल पटरियों को सीधा करना And है, let's have power in the engine. और इंजन के अंदर ईंधन भरना है। And that's what's happened throughout the years. और यही हुआ पूरे इतिहास में। If you read Christian history, अगर जो आप मसीह इतिहास को पढ़ते हैं, and that's the reason why we have meetings like this, which are not primarily for unbelievers. और इसीलिए हम इस प्रकार के जो है मीटिंग रखते हैं अविश्वासियों के लिए नहीं, There are so many meetings in India, evangelistic meetings for unbelievers. और बहुत सारे अविश्वासियों के लिए सुसमाचार का मीटिंग हमारे भारत देश में होता है, But there are very few meetings which are primarily designed to bring believers back to the teaching of the New Testament. लेकिन बहुत कम ऐसे मीटिंग का आयोजन किया जाता है जहाँ पे परमेश्वर के मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन में वापस लाने के लिए प्रचार किया जाता हो।